Okay. So Divyans, you can hear me okay, right? Sir. Okay, very nice. So देखिए आज today we are going to learn. I mean, basically, we are going to talk about the second chapter of grade 7 science maths, which is fractions and decimals. So fraction and decimals actually it's not a new thing that we have learned in grade 6 also, but we in grade 6 we primarily learned about different types of fraction, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, and then we learned about what is the equivalent function, what is how do we represent a fraction, what on a number line, and then we also learn about comparing them, etc. Okay. Apart from that, we also learned about how to do addition and subtraction of fraction. So and addition subtraction, yep, and same thing we did with decimals also. We also learned about the decimals. How do we convert decimal into fraction? How do we compare between different decimal values, and then how do we simplify? How do we kind of convert the decimals into fractions to do further calculation? Okay, so let's learn the remaining two aspects of fractions and decimals, which is primarily around um, division and multiplication. So let me quickly share my screen so that I can walk you through what all we have. I mean, basically, whatever we are going to learn today. Okay. So let me know if you're able to see my screen, madam. Can you see my screen now? Divyans, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, very nice. तो चलिए आ जाते हैं इस पे. Okay. So basically, if you talk about simple fraction is proper fraction. Proper fraction would be something like this. Okay, where this is the numerator, this is the denominator. So इसमें main or let me first put this. Let's say 2, and then there is another example. Okay, so ये तीनों में difference क्या है? ये first one is proper fraction, this is improper fraction, or this is mixed fraction. क्यों है? Proper fraction में आप देखेंगे कि this one the numerator is actually smaller than the denominator. This is called proper fraction. चाहे 1/3 हो, 2/3 हो, 5/3 हो, 5/8 हो, जब भी आपका somebody is trying to join. Okay. Good morning, sir. Good evening, beta. Seeing you after a long time. How are you? I am fine. Good, very nice. So बेटा अभी हम लोगों ने grade 7 का math start किया है. This is this is fraction and decimals. तो हमने 6th grade में we had studied fraction and decimals. तो अभी जो है we are just doing okay, we are just doing the extension of a continuation of that. तो हमने अभी तक we had learned what is proper fraction, improper fraction, then mixed fraction. उसके बाद में decimals के बारे में सीखा. How do we convert decimals into fractions? तो अभी इस क्लास में we are going to learn about
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शंस। ठीक है, आप लोगों को याद है हम लोग जो पहले पढ़ाई की थी फ्रैक्शंस के बारे में, और यू वांट मी टू रिकैप? क्रिस प्रकाश बोलिए, यू रिमेम्बर? चलिए थोड़ा सा ब्रशअप करा देता हूँ। देखिए, जैसे ऐसा कुछ नंबर हो, ठीक है, 1/2, 4/6, 6/9, इस तरह कोई नंबर, जैसे ये है, दिस इज वन फ्रैक्शन। ठीक है, वहां पे न्यूमरेटर इज 1 and denominator is 2. Similarly, if you look at this guy, 4/6, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 6। ठीक है, अगर तीसरा फ्रैक्शन देखेंगे, लेट्स से 6/9 या 12/18, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर इज 6, मतलब 6, यहाँ पे 6 इज न्यूमरेटर, 9 डिनोमिनेटर। ये तीनों फ्रैक्शन में क्या सिमिलैरिटी है कि यार न्यूमरेटर इज smaller than the denominator. So these combinations are called proper fraction. मतलब आपका न्यूमरेटर अगर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको थोड़ा सा क्रूड टर्म में समझेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी लेस देन 1। तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, दैट वैल्यू विल बी लेस देन 1। मतलब 1 is 1, राइट? 1/2 क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब एक से छोटा हो गया। तो यहाँ पे आपका 1 इज न्यूमरेटर विच इज स्मॉलर देन 2, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब एनीथिंग विच इज लेस देन 1 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, जो भी चीज है जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं 6/9 के बदले 9/6 कर दूं, अगर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज 9 things are going to be divided among 6 people. 9/6, that's what is the literal meaning, right? उसका वही मतलब है। तो नॉट, आपके पास 9 एप्पल्स है, उसको 6 लोगों में बांटेंगे तो हर आदमी को एक से ज्यादा एप्पल मिलेगा, which is more than 1. तो that is why it is called improper fraction. वो मतलब प्रैक्टिकल रेलेवेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, are you able to follow, Chris? Yes, sir. ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो हाँ, तो देखिए, तो यू कैन सी माय स्क्रीन आल्सो, राइट? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, Sir. वेरी नाइस। तो देखिए, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ बोलिए। सर, मैं पहले तो एक भी क्लास नहीं हाँ, कर बोलिए। पाया हूँ क्योंकि ना सर मेरा एग्जाम आ रहा है और मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले का बहुत सारा क्लास मेरा छूट गया है। ग्रेड 6 का साइंस वाला भी मेरा पूरा छूट गया है। क्या क्या? सर मेरा एग्जाम चल रहा है अभी, 6 इस वजह से ना ओके, मेरा ओके, बहुत सारा क्लास छूट गया है सर। कोई बात नहीं बेटा। तो मैं सारे क्लास का वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप जब भी आपका एग्जाम खत्म होगा, आप थोड़ा सा टाइम दे करके वो वीडियोस को पूरा देखना। मतलब जो भी वीडियोस में डालता हूँ ना, मैं सही बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा पूरा देख लो आप लोग। उसमें क्या होगा ना, पूरा वीडियो देखने पर आपको इट विल बी लाइक सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लास फॉर द टाइम बीइंग, और उसमें देख के आपको पता चला कि भाई वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने ठीक से समझाया कि नहीं। और अगर कुछ रहेगा कि हाँ कुछ गैप है या कुछ फिर से समझाना, तो मुझे बताएंगे, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? ठीक है, ऐसा समझो। ओके, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है। तो अभी हम लोग रिकैप कर रहे हैं कि हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के लिए पहले क्या क्या पढ़ा था। तो हमने अभी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की, और तीसरा एक फ्लेवर होता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या? मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड, जहाँ पे दो चीजें मिल गई हो। ठीक है, तो ये दिस इज योर होल नंबर एंड दिस इज योर फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको मिला करके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इसका मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसा कोई नंबर,
ऐसा कुछ नंबर हो, अगर ये मान लिया जाए ऐसा, तो ये आपका है होल नंबर है, एंड दिस इज अ फ्रैक्शन, तो दिस इज टुगेदर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप बोलते हैं ना, मान लिया जाए कि आप सब्जी लेने के लिए गए और सब्जी वाले ने कहा कि टोमेटो इज 20 20.5, क्या हो गया इसको, उसने कहा मान लिया जाए कि 20.5 रुपीज पर 250 ग्राम्स, ठीक है, 20.5 रुपीज पर 250 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका ये हो गया 20.5 को आप लिख सकते हैं 20 रुपीज और एंड हाफ रुपीज, राइट। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी तक हम लोग रिवीजन कर रहे थे, हमने कुछ अभी तक सीखा नहीं नया, ठीक है, ये पिछले क्लास का ही रिवीजन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी और क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में सीखा कि सब फ्रैक्शंस को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन को, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग को याद है वो कॉन्सेप्ट, मतलब आप लोग उसको यूज करते होंगे, प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने, नहीं भी तो पिछले क्लास का फ्रैक्शन वाला वीडियो देख करके उसके बाद थोड़े सम्स कर दीजिएगा, ठीक है, उससे थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं इस चैप्टर में लोग सीखने वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मान लिया जाए कि यू हैव टू, अच्छा एक आपको याद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ऑफ रेक्टेंगल। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। नहीं, ओके, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अभी मान लिया जाए आपका लेंथ अगर है 3/6 सेंटीमीटर, ओके, और आपका विड्थ है 2/9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एरिया है, आपको उसका निकालना है एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लेंथ आपका फ्रैक्शन में है और विड्थ भी आपका फ्रैक्शन में है, तो ये इसका हिसाब कैसे होगा, है ना। तो सेम सेम उपाय लगाएगा, हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते आए हैं कि लेंथ है आपका 3/6, ठीक है। तो जो नंबर है, जो मतलब जो फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 2/9, ठीक है, ठीक है। और इधर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, खाली देख लीजिए कि दोनों यूनिट सेम है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, बस उतना ही, ठीक है। तो अभी देखिए 3/6 2/9, अब ऐसे ऐसे जो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, आप लोग याद है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमेशा हम लोगों ने याद, पिछली बार हमने किया था, सीखा था कि जो फ्रैक्शंस है उसको हमेशा सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब जितना स्मॉल ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे टेबल हमको सबको याद है, तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 ऐसा, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 एक दूसरे को 3 और 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो बेसिकली ये हो गया आपका, ये आपका एरिया हो गया 1/9 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो अभी बताइए कि इसमें ये इज दिस क्लियर और यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ताकि मैं उस हिसाब से फिर थोड़ा इसको और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा फिर। नहीं, ओके। अभी चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कि आपका है लेंथ है, मान लिया जाए 2 × 3/8, मतलब दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया लेंथ, और विड्थ आपका मान लिया जाए है 3/9 3/9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है ना, उसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मैंने एक गलती किया आज। मैंने एक ऐसे लैपटॉप से ज्वाइन किया है जहाँ पे मैं अपना टच स्क्रीन यूज नहीं कर पा रहा हूँ। कि 1 मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन ज्वाइन फ्रॉम अ डिफरेंट लैपटॉप। आप लोग रहिएगा मीटिंग में, ठीक है, मैं जस्ट स्विच कर रहा हूँ दूसरे लैपटॉप पे, so that I can use my touch screen better. Okay. इसलिए गलती वही हो गई कि मैं आई हैव I got a membership for this one Google Premium, तो उससे वीडियो क्वालिटी तो अच्छी हो गई, लेकिन ये लैपटॉप जो है, दूसरा लैपटॉप में टच स्क्रीन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई। लेट्स मी क्विकली जॉइन। दूसरा पर यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड बेटा। और आज का क्लास ये दिस विल नॉट बी lot of much time. This is simple, but this is all about practice. That's why that touch screen is needed. Okay. Okay. You will. Mhm. आप लोग बेटा इस मीटिंग में रहिएगा। लेट मी ज्वाइन फ्रॉम अनदर मीटिंग, अनदर डिवाइस। ओके, जस्ट 1 मिनट में आता हूँ मैं। ओके सर। अब लोग हेलो ब्रो।
Hello everybody, can you guys hear me okay now? आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोग सभी लोग म्यूट पे बेटा, एक आदमी कंफर्म कर दीजिए कम से कम। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। चलिए, सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए, तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। Sir, you are not audible. Am I not audible? That is for whom? Who is not able to hear me? Shantanu या दिव्यांश? तो अभी मुझे बताइए, क्रिस, दिव्यांश, शांतनु, who can hear me okay? I mean, whoever can hear me okay, please raise your hand. Who cannot? Okay, Divyansh is able to hear me okay. Shantanu is okay. That means शांतनु आपके साइड में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो शांतनु, आई वुड सजेस्ट कि अगर दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? You can try to disconnect and join. Everybody seems to be able to okay, चलिए, ऑलराइट, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो चलिए हम लोगों ने, हाँ, तो चलिए हम लोगों ने बात किया था, हमने बात किया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? ये तीन चीज का बात की हमने, राइट? तो डिफरेंस पता है, 2/3 is a proper fraction because numerator is smaller than denominator. मतलब fraction is always a fraction or a proper fraction if its value is less than 1. तो जब आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। सिंपल एग्जांपल है, एक एप्पल को 2 बच्चों में बांट दिया गया तो 1/2 मिला, विच इज लेस देन 1, ठीक है? उसी तरह से अगर आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो दैट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर का हिंदी कौन बता सकता है मुझे? इम्प्रॉपर कुछ तो बोलते थे ना, ठीक है, आई विल फाइंड इट आउट। अभी के लिए टेंशन ले लेते हैं इसको, ठीक है? तो इसमें देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां पे कि अप्राकृतिक भिन्न, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद से, ठीक है? दैट विल फिगर आउट। तो जहां पे कि आपका जो है न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब उसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, तभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? मान लिया जाए कि 5 चॉकलेट्स आर देयर एंड देयर 2 किड्स हु आर सपोज्ड टू गेट इट ऑल। तो 2 बच्चों में अगर 5 चॉकलेट को बराबर बराबर बांटा जाएगा तो 5 chocolates are divided among 2 kids. That is when everybody will get more than 1, and that is called improper fraction, ठीक है? मतलब any value which is more than 1 in fact, I mean any fraction whose value is more than 1 is improper fraction. और mixed fraction में it's always this thing where you have a whole number and then you have a fraction. तो अगर आप इसको थोड़ा और क्लोजली सोचोगे ना,
Any improper fraction converts into a mixed fraction only. ठीक है, because value is more than 1, so that is what will come as a whole number and a fraction after you simplify this. ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं. हमने फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखा, कंपैरिजन सीखा. अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे. ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में जो भी करते हैं उसका, उसमें डिवीजन जो है उसका उल्टा होता है, हम पलट देते हैं उसको. मतलब that is the simplest way to look at it. मतलब you think of a division thing where you have somebody who is very good at somersault. मतलब जिस तरह करता ना वैसा होगा. अब जैसे दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ. अभी मान लिया जाए आपको you have to multiply two fractions. मान लिया जाए 2/6 and multiply that with 1/5. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको ये एक फ्रैक्शन था, ये एक फ्रैक्शन था, ने मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसे मल्टीप्लाई करने वक्त क्या होता है कि न्यूमरेटर में जो भी रहता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज व्हाट विल बिकम योर रिजल्ट. 2 × 1 2 हो जाएगा, 6 × 5 30 हो जाएगा. एक वैल्यू ये हो गया. अगर आप और भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखते हैं कि भाई कोई किसी का मल्टीपल है कि नहीं. अब 2 का मल्टीपल है 6, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है. 2 3 × 6, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी ये 2 कट गया, मतलब स्ट्राइक ऑफ हो गया, तो इट विल बिकम 1/5 × 3, मतलब 1/15. तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन. अभी आपको कोई कहता है क्या 2/5, इसको डिवाइड 2/5 by 1/9. ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा डिवाइड करने बोल रहा है, तो मैंने क्या कहा था, इमेजिन डिवीजन एज अ टॉय विच फ्लिप्स ओवर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आप करेंगे 2, इसको ऐसा है तो इसको 2/5, इसको अगर डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो ये दिस गाय फ्लिप्स ओवर, तो मतलब 9 गोज अप 1 कम्स डाउन. ठीक है, तो ऐसा बन जाता है, एंड देन एवरीथिंग कंटिन्यूज एज मल्टीप्लिकेशन. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डिवीजन को अगर डिलीट करके उसके जगह पे आप मान लीजिए अगर डिवीजन को डिलीट करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डालना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आते हो, तो ये बंदा गुस्से में पलट जाता है. ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है. अगर आप ये करते हो तो आपका पूरा जो हम चैप्टर में करने वाले सब खत्म, और कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए. तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो अब रियल लाइफ में जरूरत क्या पड़ेगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई एरिया निकालते हैं. अब एरिया फॉर टेबल इज ऑलवेज लेंथ टू विड्थ. ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग नॉर्मल जब होल नंबर के साथ करते थे, भाई एरिया में अगर लेंथ आपका मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर था और विड्थ जो है आपका 4 सेंटीमीटर था, तो बहुत आसान था, सीधा लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो 2 × 4 करके 2 × 4 किया आपने, और सेंटीमीटर का इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट. सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि कोई, हाँ, अगर मान लिया जाए एग्जांपल के लिए आपको अगर 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना है, विच इज 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, देन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. ठीक है, so the unit has to be the same always, so it will become centimeter cube. ठीक है, तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना बढ़ता जाएगा वो. अगर 4 सेंटीमीटर 4 चीजों को मल्टीप्लाई करना तो सेंटीमीटर टू द पावर 4 हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा सर. ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, तो अभी ये मान के चलेंगे कि लेंथ और विड्थ दोनों का हमारा यूनिट सेम ही है. अगर लेंथ मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर और विड्थ जो है आपका 5 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाता है आपका 1 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था लाइफ में. अभी अगर रहेगा कि मान लिया आपका लेंथ बोलता है कोई 1/4 और विड्थ ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, विड्थ बोलता है 2/9, तब क्या करेंगे. अभी दैट इज वेयर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कम्स इनटू प्ले. 1/4 × 2/9.
और चूंकि ये यूनिट और ये यूनिट सेम ही है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया था। ठीक है, तो ये इसको आप साइलेंट रखिए, अभी देखते हैं इसका क्या हिसाब करना है। अब देखिए 2 जा 4, ठीक है, तो दिस बिकम्स 1, ऊपर में ऊपर का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सिर्फ 1 ही है, तो दिस बिकम्स 1, 2 इंटू 9 बिकम्स 18। तो दिस इज योर वैल्यू। तो ये दिस इज वन फ्लेवर। ठीक है, अभी आप लोग के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख के रखा हुआ है। लेट मी हेल्प यू गाइस डू सम प्रैक्टिस आल्सो। तो ये हो गया आपका क्या है ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो सिंपल आपका सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन का एक सिंपल एग्जांपल था। अभी मान लिया जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, लेंथ आपका 2/9 है और विड्थ आपका 15/6 है। तो यहाँ पे क्या है, एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यू विल जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग इट। तो 2/9 इंटू 15/6 जो बोल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सिर्फ आपको रखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। अब 3 5 जा 15। हमेशा रखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में होना है, नीचे आपस कुछ हिसाब नहीं करते हैं, दैट आई बिलीव यू गाइस नो, राइट। अभी देखिए, तो ये 3 5 जा 15, तो ये वैल्यू हो गया 5/9, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। अभी मान लिया जाए आपको कोई बोलता है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तब आएगा थोड़ा सा जब आपको करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन और मान लिया जाए एक फ्रैक्शन, मैं हमेशा 2 ही क्यों लिख रहा हूं, चलिए 6 कर देते हैं, 6/8। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हमेशा कोशिश करेंगे कि पहले इसको जो है ना, जहां भी मिक्स फ्रैक्शन आपको दिखे उसको पहले हमेशा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मतलब उसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा भी आराम करने रहता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 2/9 इसको हम लोग पहले सिंपल करके, इसका फॉर्मूला होता है यू ऑलवेज गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, 9 you always multiply the denominator with 2 with the whole number and then add the numerator. ठीक है, तो this becomes 9 into 2 and then at the bottom this remains as is. ठीक है, तो 9 into 2 18 plus 2 20 और डिनोमिनेटर डजंट चेंज, वो उतना ही रहता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप हमेशा एक एक क्लॉकवाइज मूवमेंट ध्यान में रखिएगा। आपको किसी ने कहा कि ये आपको किसी ने दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आपको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्चुअली प्रॉपर तो कहीं बनेगा नहीं है, इम्प्रॉपर ही बनेगा, तो आपको इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज जा करके, यहाँ से आपने शुरू किया यहाँ पे आगे खत्म करेंगे, तो मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे। इसको पता था कि इसको मल्टीप्लाई, दिस वन इज मल्टीप्लाई, दिस वन इज प्लस, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 by 9। यहाँ पे होता है डू नथिंग, इट्स लाइक नो योर व्हीकल इज स्टॉपिंग नाउ, यहाँ पे आपने रोक दिया, आपने बस गाड़ी रुक रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट को ध्यान में रखिए। अगर किसी ने कहा, ठीक है, अब 15 का टेबल जो है कितने लोगों को याद है, 15 6 जा 90 प्लस 2 90/6। ठीक है, और अगर जब भी फ्रैक्शन रहेगा आप उसको, अगर कोई मान लिया जाए कि 6/15 अगर है फ्रैक्शन, यू कैन ऑलवेज लुक एट कि क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो 6 को यू कैन ऑलवेज राइट एज 2 into 3
और 15 को यू कैन राइट एज 3 into 15. बेसिकली यू आर जस्ट स्प्लिटिंग दैट, और फिर इसको ये एक दूसरे को स्ट्राइक ऑफ करता है, तो इट बिकम्स 2/15. सॉरी, क्या किया मैंने, 2/5. ठीक है, तो फ्रैक्शन के केस में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी. कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करो, आपको फिर भी जरूरत पड़ेगी इसकी. ठीक है, और दूसरा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मतलब अगर आपको टेबल याद है तो ये खेलने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है एक्चुअली. ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ एक दो प्रैक्टिस करते हैं. मान लिया जाए आपको करना है 8/16, 8/15 करता है, मल्टीप्लाइड बाय 2/9. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं. ठीक है, 8 into 2 16 by 15 to 9 135. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसको करके इसका वैल्यू छोटा भी कर सकते थे. ठीक है, अगर इफ यू डीलिंग विथ लेट्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 16/5 into 12/8, ऐसा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों. इम्प्रॉपर और प्रॉपर कोई अंतर नहीं पड़ता, योर अप्रोच विल रिमेन द सेम. घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ जितना भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब इसे 8 है, 8 यहाँ पे दिख रहा है, 8 2 16 हो गया. अच्छा है, 12 into 2 24/5. तो ये खेलने की, मतलब फ्रैक्शन को लेकर के ना, पेन पेपर लेकर के यू कैन जस्ट प्ले विद इट. मुझे तो हमने सीखा कि भाई अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना हो इनटू 2/9, तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो अभी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है क्या, कि 3 1/8 था, तो 3 8 जा 24 प्लस 1 25, तो ये बन जाता है आपका 25/8. ये था 3 1/8, ये वैल्यू था आपका, ये मिक्स फ्रैक्शन था जिसको हमने कन्वर्ट किया. 3 8 जा 24 प्लस 1 25/8. अभी देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 2 4 जा 8, या मतलब इसलिए ऐसे भी होता है कि 8 is 2 into 4, तो 2 2 कट गया, बच गया 4. अब दिस बिकम्स 25 डिवाइड बाय 4 9 जा 36. या तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट. मतलब सिंपल मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. इसके लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट में बताया यहाँ पे. अगर एक मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको कर लेंगे. अगर मिक्स फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आइए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद जो खेलना है उसके साथ खेलिए. ठीक है, एनी कंफ्यूजन सो फार? बोलिए भाई. शांतनु, दिव्यांश, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके. नो सर. नहीं, मैं पूछता रहता हूँ जस्ट टू अफर्म कि भाई मैं अपनी गाड़ी अपने हिसाब से चला रहा हूँ या आपके हिसाब से चला रहा हूँ. ओके गुड. चलिए, तो देखिए हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी कभी भी. अब इसमें क्या करना है, बुक खोलिएगा और अपने हिसाब से कीजिएगा. दूसरा चीज है मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, ये तो फ्रैक्शन हम लोग ये मैथमेटिकल पार्ट सीख रहे हैं, लेकिन आप जब सम कर रहे होंगे तो इट विल नॉट ऑलवेज कम एज कि हाँ मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, ऐसा नहीं होगा. इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार बोलता है पढ़ने के लिए उतना बार पढ़िए, और उसके बाद देन यू
डिराइव द मैथमेटिकल फार्मूला। कोई कहता है कि राम के पास 1/5 ऑफ नो लेट्स से 1/5 किलो ऑफ राइस है, he gets 2/5 kilo of rice from somebody else, then how much rice now he has। तो वो आपको बता रहा है कि भाई आपको एक सम करना है कि 1/5 और 2/5 को जोड़ना है। तो देन यू विल राइट योर इक्वेशन, देन यू विल डू द कैलकुलेशन। उसमें ही कहता है अगर लेट्स से somebody will say कि no, some question will say कि somebody has 2/3 of 2/3 kilo of atta, let's say. I'm just giving you guys right a practical example, and he tries to multiply that by another 3/4 kilo of atta. Okay, yes, और ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 kilo of atta somebody has, he wants to get 3/4 times of it for his daily cooking। तो बेसिकली आपको हो गया, इसका ये बोल रहा है कि 2/3 का इतना टाइम, इसका टाइम्स उतनी बार। तो जब इसको करेंगे तो आपको हिसाब किताब निकलेगा। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट 1/2 किलो ऑफ आटा, ओके, एवरी टाइम। तो जो भी है, मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैथ मिलेगा, उसको कोई भी सम रहेगा ना, डोंट गिव अप इन द फर्स्ट को, उस सम को पढ़िए एक बार कि बच्चे क्या बोल रहा है, उसको ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट एंड समझिए, उसको फिर पेपर में लिखिए कि क्या बोल रहा है वो। एक बार नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए, मतलब जस्ट गो ऑन रीडिंग इट as many times that the sum becomes weaker than you। वो होता है एक्चुअली। आपको कोई भी सम रहेगा तो उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, समझिए क्या बोलना चाह रहा है वो। Once you get the meaning of it after reading it 2-3 times, then you'll see कि इसका calculation is like a cakewalk always। okay? तो हर एक मैथ के साथ वही होता है। तो वही कीजिएगा, मतलब आपको ऐसे सिंपल नहीं आएगा। जैसे अभी एक बोलता है, मान लिया जाए somebody says कि चलिए एक रेक्टेंगल somebody has 1/3 of a rectangle। ओके, एक रेक्टेंगल मतलब मान लीजिए ये चॉकलेट है, मान लीजिए कैडबरी डेयरी मिल्क का बार है ये, ठीक है। he gets 1/3 of it। okay, next day morning his dad gives him another 1/3 of it। ठीक है, how much he has got so far। तो you will say 1/3, पहली बार मिला 1/3 कैडबरी डेयरी मिल्क का, दोबारा मिला 1/3। ठीक है, तो मतलब 1/3 + 1/3 2/3 मिला है इसको। ठीक है, इसको मैथमेटिकली आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर सेम वैल्यू है, दो चीज सेम वैल्यू को दो बार ऐड कर रहे हैं, तो यू कैन एज वेल से 2 × 1/3, मतलब 2 टाइम्स 1/3 मिला है। राइट, प्रैक्टिकल है। राइट, आपको बोलते हैं कि 2 रुपये आज मिला, 2 रुपया कल मिला, तो 2 बार 2 रुपया मिला, तो 2 × 2। राइट, तो सेम वे यू कैन मल्टीप्लाई इट। अगर सेम थिंग यू गेट 5 टाइम्स, लेट्स से कि भाई I got 1/4 of a cake 4 times। ठीक है, so you have 2 options, you will add these 4 guys, this plus this plus this plus this, right? Or you can say 4 times 1/4 बोल सकते हैं। ओके, तो 4 टाइम्स, हाँ, तो 4 टाइम्स 1/4। अब कोई भी नंबर, अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, when you are dealing with any number, any whole number, you can as well write that as this by 1। ठीक है, any number, any whole number can be represented as a fraction whenever you feel like, in this way। ओके, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ओके, ठीक है। तो अभी देखिए, जब भी कोई सम करने के लिए अगर कुछ मान लिया जाए कि 4 टाइम्स, हर बार 4 ही क्यों, कुछ और भी तो कर सकते हैं। 7 times 2/9, दिस इज ऑल्सो सेम एज अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ नहीं, इसको 1 कर दीजिए, हो गया, फ्रैक्शन बन गया। आप कर दीजिए जो करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अगर सिंप्लीफाई करने का उपाय नहीं है तो, एंड दैट इज व्हाट बिकम्स योर वैल्यू। तो 7 × 2 14,
1 इंटू 9 9, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन के साथ में जो भी खेलकूद करना था कर लिया हमने। वी लर्नड how do we multiply improper fraction with improper fraction or proper fraction? How do we how we can multiply a mixed fraction with proper improper fraction? फॉर्मूला ये रहेगा कि मिक्स फ्रैक्शन में जो भी रहेगा उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अगर कोई आपको ऐसा बोलता है दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 1/9, दिक्कत कुछ नहीं है लाइफ में, पहले आपको सिर्फ इसको improper fraction में कन्वर्ट कर देना है। After that nothing changes for you. Your approach will remain the same. This becomes 2 3 is 6 plus 1 7 divided by 3. So this is 7/3 into this is 9 3 is 27 plus 128 divided by 9. 28 divided by 9. तो this is nothing but a normal fraction का multiplication, हम जो करना है कर लीजिए, है ना, टेबल तो हमको आता ही है। तो so this is what is all about the multiplication of fraction. I'm just repeating myself. The questions that you will come across will not be in the form of this normal this thing. आपको हमेशा उसके पीछे एक स्टोरी रहेगी, उस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा, उस स्टोरी को पढ़ करके उससे आपको ये इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये इक्वेशन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है, तो उस जब भी सम आए उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए, देन यू राइट द इक्वेशन, मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसके बाद फिर उसके खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अभी देखिए कि डिवीजन पे आता है, या कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए भाई। ओके ठीक है, अभी देखिए और भी ऐसे एग्जांपल होगा, जैसे कि कोई मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिफोर आई गो टू डिवीजन। ओके, मान लीजिए कोई कहता है 1/3 ऑफ अ सर्कल, 1/3, लेट्स से दिस इज अ पिज्जा। ओके, तो बोलता है डिवाइड, हम लोग डिवीजन पे भी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है, तो कहता है 1/3 ऑफ अ पिज्जा। तो आप लोग पिज्जा को देखे होंगे ऐसे, ठीक है, दिस इज 1/3, मतलब अज्यूम कर ले कि मैंने बराबर बराबर बांटा है, दिस इज 1/3 दिस इज 1/3, राइट। अब कोई कहता है अगर हाफ ऑफ 1/3, अब आपने कहा ना, मान लीजिए कि आपने पिज्जा लाया, घर में बांटा 3 लोगों में, अभी आपके पापा मम्मी बोलते हैं कि नहीं भाई हम लोग को पूरा नहीं चाहिए, वी विल टेक हाफ ऑफ दैट 1/3। कि मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे क्रिस और वेद प्रकाश के फैमिली की बात कर रहे हैं कि भाई इनके घर में एक पिज्जा आया और वहां पे क्रिस वेद है और पापा मम्मी है घर में, तो अब 4 लोग हैं, पापा मम्मी ने कहा कि नहीं हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग एक टुकड़े में आधा ले लेंगे। तो मतलब चलिए आप लोगों ने क्या किया भाई, 3 टुकड़ा कर दिया, दिस इज 1/3 दिस इज 1/3 दिस इज 1/3। हाँ, पापा मम्मी बोल रहे हैं कि इसका आधा ले लेंगे, तो यहाँ पे ये क्रिस को मिला 1/3, ये वेद को मिला 1/3, अब ये 1/3 का भी आधा करने वाले हैं लोग। हाँ, तो ये दिस इज टोटल 1/3। अब इसका अगर आधा, तो देखिए इसका यहाँ आधा करना होता है तो क्या करेंगे, कोई भी चीज का आधा मतलब डिवाइड बाय 2, ये आपका फ्रैक्शन है, यही इसका मीनिंग है, राइट, क्लियर। तो समझिए कि यहाँ पे आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, इसको यू कैन नॉट मिक्स दिस विद दिस, ये अलग अलग नंबर्स है। तो अगर पहला क्या फॉर्मूला होता है कि हम हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो आपका होल नंबर उसको फ्रैक्शन में करेंगे, ये आपका फ्रैक्शन है इधर, ये आपका होल नंबर है, तो क्या करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 2, हाँ, तो ये 1/3 है डिवाइड बाय 2, तो इसको पहले इसको करेंगे फ्रैक्शन में। मैंने क्या कहा था, डिवीजन करते वक्त में जब भी फ्रैक्शन को डिवीजन करते हैं, मतलब अभी ये इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1/3 डिवाइडेड बाय 2/1, ऐसा हो गया ये, ठीक है। इसको 1/3 को आप 2 टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे,
यहाँ पे ये सर्कस का जोकर है, ठीक है, 1/3 डिवाइड बाय 2/1, ये पलट जाता है। जैसे इस डिवीजन को प्लस बनाते हैं ना, ये गुस्से में पलट जाता है, ऐसा हो जाता है अपसाइड डाउन। So this becomes 1/3 into 1/2, ऐसा हो जाता है। मतलब ये पलट गया इधर, ये ऐसा ऐसा पलट गया, है ना। तो दिस इज द बेसिक थंब रूल दैट वी हैव टू रिमेंबर, कि जब भी फ्रैक्शन को डिवीजन करते हैं, जैसे कि ऐसा है, अगर 1/4 डिवाइड बाय 2/9, ये ऐसा भी लिखा हो सकता है या ऐसा लिखा हो सकता है कि 1/4 डिवाइड बाय 2/9, है ना। तो जब भी ऐसा रहेगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जोकर है ये पलट जाएगा। जैसे इसने आपको प्लस किया, दिस गोज अप, दिस गाय कम्स डाउन, मतलब 2/9 बिकम्स 9/2। उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद ना। आपको कोई कहेगा कि डिवाइड 3/5 बाय 1/9, आपको पता है ये जोकर है पलट जाएगा। मतलब इसमें आपको सबसे पहले ये करेंगे और इसको ऊपर इसको नीचे, तो दिस बिकम्स 3/5 इंटू 9/1। अब जो करना है कर लीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन, 9 3 27, 5 1 5, सो 27/5। सेम थिंग अप्लाइज अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन से करना है, तो पहला काम सबसे पहले, अगर मान लिया कोई कहेगा 2 7/6 डिवाइड दिस बाय 5/4, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि दिस इज लाइक ए ब्रैकेट थिंग, ओके। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, बोलते हैं सबसे पहले आप ब्रैकेट का हिसाब करते हैं, उसके बाद देन यू गो ऑन डूइंग अदर ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे भी सेम रहेगा। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं अनलेस यू सिंप्लीफाई दिस और कन्वर्ट दैट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इस भाई साहब का हिसाब कीजिए। आपको पता है कि दिस बिकम 6 × 2 + 7/6, तो 6 2 12 + 7 19/6। अब देखिए ये दिस हैज बिकम अ नॉर्मल हिसाब किताब, आपको इसमें अब ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि डिवीजन जो है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने पे ये भाई साहब पलट जाते हैं हमेशा, है ना। तो 19/6 दिस जो है दैट विल बिकम 19/6 इंटू 4/5। अब आपको इतना सिंप्लीफाई करने का उपाय दिख रहा है, 2/2 2 = 4 2 3 = 6। अब 19 अब और नहीं हो रहा है, तो 19 × 2 38 / 5 3 = 15। तो योर आंसर इज 38/15, ठीक है। तो देखिए हम अभी तक नॉन स्टॉप बोल रहे थे, हमको ये जानना जरूरी है कि आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर? ओके, नो कोई सर। कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। हाँ हाँ दिव्यांश बोलिए। सर मैं तो 2 टाइम्स पढ़ रहा हूँ। क्लियर है? ओके। अभी देखिए एक, हाँ ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली पढ़ाई जो भी आप 2 बार कीजिए 3 बार कीजिए डजंट हर्ट। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका वो फिर दैट बिकम्स हैबिट, कि आपको आदत पड़ जाती है उस चीज की, देन यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ रेफर कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या पढ़ाना है, बाकी कैसे करना है वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि बचपन में किया था, राइट। तो और ये अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ती रहती है इसकी। चलिए अभी एक और चीज हमको करना है, डेसिमल्स। डेसिमल्स में एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना। डेसिमल का जब भी बात आए ना, आपको सबसे पहले सोचना है कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लें। द टाइम यू डू दैट योर जॉब इज डन। अब मान लिया जाए कोई कहता है क्या, तो उसके बाद एक बार अपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया अगर, तो उसके बाद यू विल डू एवरीथिंग लाइक व्हाट वी हैव लर्न सो फार। जैसे कि मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हमने सीखा है, राइट। डिवीजन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पलटना, मल्टीप्लिकेशन में उसको सिंप्लीफाई करना, जो भी, राइट, ये वैसे ही चलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज सीखना है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने वो कर लिया, हो गया। अब 2/5 हम लोगों ने पिछले क्लास में ही किया था। इसको डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे करते हैं कि ये जो डॉट रहता है ना, उसके बदले में हमेशा 1 ले आते हैं नीचे, एंड देन यू ट्रैवल इन द राइट डायरेक्शन, कि भाई कितने
पॉइंट, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, कितने नंबर्स है, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक है, तो इसके बदले डॉट के बदले 1 और 5 के बदले में, मतलब एक नंबर के बदले में 0। तो अगर मान लिया 2 × 5 0 होता, अगर 5 0 ऐसा होता, तो आप इसके बदले में 1 लाते और 2 नंबर्स हैं तो 2 0 लाते। That's it. Then the decimal disappears. This becomes your normal fraction, 250/100. अब उसके जो खेलना है खेलिए। आपको ये भी पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, लास्ट के जीरोस होते हैं उसको आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, तो दिस बिकम 25/10। आपको फिर से पता है 25 इज 5 × 5, 10 इज 2 × 5, तो ये 5 एक 5 स्ट्राइक ऑफ हो गया, तो 5/2। तो बेसिकली ध्यान से भी इतना रखना है कि भाई डेसिमल जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मान लीजिए कोई कहता है 7/4 × 7.4 × 2.9, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बोलना है 7.4 = 74/10, क्योंकि डेसिमल के बदले 1 और उसके बाद डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक वैल्यू है तो 1 0 आ गया, इनटू 2.9, तो मतलब इसमें से डेसिमल को गायब कर देंगे, क्योंकि डेसिमल को गायब करने के बदले में 1 मिलेगा और उसके बाद वहां पे एक डेसिमल है, तो ये हो गया। तो दिस बिकम्स योर न्यू फ्रैक्शन। अब देख लीजिए इसको क्या करना है, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 74 का मैक्सिमम आप 37 टाइम्स में 74 होता है और 2 5 या 10 होता है। अब इससे सिंप्लीफाई आप इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब 37 29 को मल्टीप्लाई कर दिए, वो आपका न्यूमरेटर बन गया, इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बन गया। सेम थिंग अप्लाइज फॉर डिवीजन आल्सो, कि मान लिया जाए आपको बोलता है डिवाइड 2.5 बाय 3.2, क्या करेंगे, ये सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो 2.5 बिकम्स 25/10, क्यों, क्योंकि इस भाई सब के बदले में 1 और एक डेसिमल प्लेस तक है तो उसके बदले में 1 0। अभी ये हो गया आपका, अभी तो हमने डिवीजन स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। इस 32 के बदले में जाता है 32, 3.2 के बदले 32 डिवाइड बाय 10, क्योंकि इस भाई साहब के बदले में 1 और एक डेसिमल प्लेस है तो 1 0, ठीक है। अभी आपका फ्रैक्शन बन गया, तो 25/10 32/10, ठीक है। तो ये है 25/10 डिवाइडेड बाय 32/10। आपको ये पता है जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाना चाहते हैं तो गुस्से में पलट जाता है, तो ये गुस्से में पलट गया, दिस गोज हियर, दिस कम्स हियर, तो ये आपका बन जाता है 25/10 इंटू 10/32। अब जो करना है कर लीजिए, इसके साथ जानते ही हैं क्या करना है। ये देखिए तो 10 सीधा गायब हो गया, 25/32 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि डेसिमल के साथ में अगर कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कन्वर्ट डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, और उसके बाद जो भी करना कर डालिए। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जानते ही है। तो इस पूरे क्लास में टेक अवे ये था कि हमको फ्रैक्शन के साथ में कैसे डील करना है, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होंगे तो कैसे डील करना है, और डेसिमल के साथ कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन कैसे होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल का कोई साथ आपको डील करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इवन ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो पहले आप उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ना, उसके बाद देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड स्पीड। और मैथ में आप लोग जो भी करेंगे उसको हमेशा कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और क्वेश्चन को भी मिले तो डोंट रश फॉर एन आंसर, इट्स ओके टू राइट लेस करेक्ट आंसर देन राइटिंग मोर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना एग्जाम में आप जाते हैं, आपको मान लीजिए 10 सवाल करना है, अब 10 सवाल जल्दी 10 सवाल खत्म कर लिया और सारे गलत हो गए तो मार्क्स नहीं मिलता है। अगर आपने 5 सवाल किया, 5 ही सवाल कर पाए बिकॉज यू वर पेइंग मोर अटेंशन, टेकिंग मोर टाइम, अगर आपने वो 5 सही किया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि 10 मत कीजिए, 10 कीजिए, बट विथ एक्यूरेसी, विथ करेक्शन, ओके। तो हर एक सम को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और उसको समझिए। और मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल दैट आई एम टीचिंग विल नॉट बी नीडेड एक्चुअली आफ्टर सम टाइम, क्योंकि एक बार आपने वो मैथ का पकड़ में आ गया ना तो फिर मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ये सब सीखने के लिए। ये सब तो मतलब दीज आर लाइक सिंपल कॉन्सेप्ट्स, मोर टू डू विद प्रैक्टिस एक्चुअली, है ना। चलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट,
Anything that you would want me to explain? एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। लोग बोलते हैं मैथ बहुत डिफिकल्ट चीज है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैथ सबसे आसान चीज है एक्चुअली, बिकॉज मैथ में आपको कुछ याद रखने की जरूरत है, मैथ में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड मैथ इज द मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब आप सो के उठने के बाद से सोने से पहले तक में वन थिंग दैट यू डील विद एवरी नाउ एंड देन इज मैथ। पेरेंट्स ने बोला जाके सब्जी लेके आ जाओ, मैथ। पढ़ाई कितने घंटे करना है, दिन में कितने घंटे हैं, वो हाँ करेक्ट, एवरीथिंग इज मैथ एक्चुअली। सब्जेक्ट इज मैथ। तो हाँ नहीं, और मैथ देखिए, मैथ आपका फेवरेट भी होगा, एंड मैथ इज आवर नेसेसिटी आल्सो। कि भाई नौकरी करेंगे तनख्वाह मिलेगी, सबसे पहला क्या काम करेंगे, मैथ। कि भाई कितना पैसा आया, कहाँ पर कितना लगाना है, घर में रेंट कितना भरना है, ईएमआई कितना भरना है, रोज मैथ का चक्कर पड़ना है। तो वो आपके लाइफ का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो मैथ इज नॉट समथिंग दैट यू एक्चुअली स्टडिंग, यू आर लर्निंग फॉर लिविंग अ बेटर लाइफ, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के लिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं, एंड देन विल अगेन कंटिन्यू विद चैप्टर 3 फॉर ग्रेड 7 एंड द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे क्रिस आपको बेटा समझ में आ रहा है क्या, या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? आई नो आपके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्लास है, बट यू आर माय टीचर, यू विल टेल मी whether I'm explaining it better or not. Yes, sir. क्रिस समझ में आ रहा है ना बेटा जो मैं बता Yes, रहा sir. हूँ? ओके चलिए फिर ठीक है, दैट इज माय ओनली वे टू एश्योर कि मैं ठीक ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब। ओके ठीक है, चलिए फिर आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, बिकॉज वी हैव द नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स, है ना? ऑल राइट, चलिए फिर विल मीट अगेन next week for the science classes and sorry, math classes, and in 10 minutes for the English speaking one. Chaliye. All right, bye bye.